برکت آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ عزیز مومنین، آج ہم سب 22ویں اتوار کی عبادت کے لیے خداوند کی پاک ہیکل میں موجود ہیں، اور آج کی تلاوت میں ہمیں نصیحت کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ پر تقدیر کریں اور اپنے آپ کو خدا کی زندہ مقدس اور پسندیدہ قربانی ہونے کے لیے پیش کریں، اور اس دنیا کے موافق نہ بنیں بلکہ باطل کی تجدید سے خود انکاری کریں اور خدا کی مرضی اور پسندیدہ زندگی گزاریں۔ اس عبادت کے شروع میں ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر ان پاک رسموں کو ادا کر سکیں۔ میں قادر مطلق خدا کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں، نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ خدائی سب فرشتوں، مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے، آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیکیت آدمیوں کے لیے سلامتی۔ اے خداوند خدا، آسمانی بادشاہ، خدا کا عالم مطلق باپ، تیرے عظیم جلال کے لیے ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح، اے خداوند خدا، خدا کے بڑے باپ کے بیٹے، تو جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے ہم پر رحم کر۔ تو جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے ہماری دعا قبول کر۔ تو جو باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی اکیلا قدوس ہے، تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو ہی اکیلا یسوع مسیح روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں اعلیٰ درجے پر ہے، آمین۔ اب دعا مانگیں۔ الاشتروں کے خدا، ہر افضل چیز تیری ہی ملکیت ہے، اپنے نام کی محبت ہم میں دل نشین کر دے اور ہمیں دینداری کی ترقی عطا کر، تاکہ ہم میں نیکیوں اور خوبیوں کی پرورش ہو اور وہ تیری خبر گیری کے ساتھ پرورش پا کر محفوظ بھی رہیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ پہلی تلاوت علم نبی کا صحیفہ اس کا 20 باب 7 سے 9 آیات تک۔ آج کی اس تلاوت میں ہم سنتے ہیں کہ خدا کا بندہ ارمیا بتاتا ہے خداوند کے کلام کی آگ ہمارے درمیان موجود ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کے ہاتھ سے بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل کیا جاؤں اور تیسرے دن جی اٹھوں۔ اس پر پطرس اسے الگ لے جا کر اس سے اعتراض کرنے لگا اور کہا، اے خداوند تیری سلامتی ہو، یہ تجھ پر کبھی واقع نہ ہوگا۔ اس نے پھر پطرس سے کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے۔ تب یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہے اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے؟
या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने इंसान अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा और तब हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। जिले जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। एक बादशाह था जो ना सिर्फ अपनी सल्तनत में बल्कि दूसरी बहुत सारी बादशाहत में भी मशहूर था, लोग जानते थे, और उसकी मकबूलियत की वजह वो रहम दिल था, दया करने वाला और बेसहारों का सहारा बनने वाला था। इसी मकबूलियत की वजह से लोग दूर दूर से उसके पास आते थे ताकि उससे मदद हासिल करें, उससे मदद हासिल कर सकें। ऐसे ही एक शख्स जो दूसरी सल्तनत से उसके पास आया, लेकिन इससे पहले कि वो दरबार में दाखिल होता, महल में दाखिल होता, जो गेट पर खड़े हुए सिपाही थे उन्होंने उसे रोका और उससे दरियाफ्त करना चाहा कि तू क्यों आया यहां। उसने बताया कि मैं बादशाह से मदद लेने के लिए आया हूं। तो सिपाही ने कहा कि जी मैं 2 शर्तों से तुझे अंदर बादशाह के सामने पेश कर सकता हूं। उसने कहा कौन सी शराइत? कहता पहली शर्त कि तुझे अंदर जाने के लिए यहां 15 दिनार देने पड़ेंगे। 15 दिनार। उसने जैसे तैसे अपनी जेब पोतलियों में से पैसे इकट्ठे किए और उससे पास 10 दिनार हुए। उसने कहा जी 15 दिनार तो नहीं मैं दे सकता, मेरे पास सारे कुल मिला के 10 दिनार है। उसने कहा चल ठीक है दे दे, वही दे दे। और दूसरी शर्त ये कि बादशाह से तू जो कुछ भी हासिल करेगा, तुझे बादशाह जो कुछ भी देगा उसका आधा हिस्सा मेरा है, 50% मेरा है। उसने कहा ठीक है जी दे दूंगा जो भी बादशाह से मुझे हासिल होगा। जैसे महल में दाखिल हुआ, दरबार लगा था और वो पहले ऐसा नहीं था कि अकेला मदद के लिए आया था और बेशुमार से लोग थे। आखिरकार जब उसका नंबर आया, उसकी बारी आई, तो अपनी बारी पर उसने हाथ खड़ा किया और कहा कि मैं आपसे मदद लेने के लिए आया हूं। इससे पहले कि मैं मदद आपसे हासिल करूं, मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि मुझे 80 कोड़े लगाए जाएं। अब बादशाह ने जब ये सुना कि ये जो फरियादी आया है ये तो 80 कोड़े मांग रहा है, कई लोग ये सुनकर हंसने लगे, कई लोगों ने ताज्जुब की निगाह से देखा और कईयों ने सवालिया निगाह से कि क्यों ये 80 कोड़े मांगता है। बादशाह ने उन सारे बातों को, खामोशी को तोड़ते हुए उससे कहा तू मुझे बता तूने क्या जुर्म किया है कि जो 80 कोड़ों की सजा तलब करता है। उसने कहा बादशाह सलामत मैंने कोई गुनाह या खता नहीं की है, लेकिन जब मैं आपके दरबार में आया, इससे पहले कि मैं अंदर दाखिल होता, तो उसने सारी रोदात सुनाई कि बाहर खड़े हुए सिपाहियों ने मुझसे 15 दिनार मांगे और मैं 10 देकर अंदर आया हूं और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी तुझे बादशाह से मिलेगा उसका आधा हिस्सा हमें देना। तो इसलिए मैंने 80 कोड़े मांगे हैं ताकि 40 मैं खाऊं और 40 वो खाए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा क्यों? तू मुझे उसकी शिकायत करता, उसकी कंप्लेन करता तो तुझे कुछ भी ना सजा ना मिलती। उसने कहा क्योंकि मैंने बुरे का साथ दिया है, बुरे का साथ दिया है। उसने बुराई के लिए कदम बढ़ाया और मुझसे रिश्वत मांगना चाहिए और मैंने अपना मतलब या अपना मकसद पूरा करने के लिए उसको रिश्वत दे दी। गो कि उसकी मिकदार के मुताबिक नहीं, अपनी
اطاعت کے مطابق، اپنی جیب کے مطابق اس کو میں نے وہ رشوت دے دی، تو سزا کا حقدار میں بھی ہوں۔ بادشاہ نے یہ جب سنا اور حیران ہوا کہ میری سلطنت میں، میرے ہی دربار میں، میرے ہی محل میں ایسا ہو رہا ہے۔ اس سپاہی کو بلایا گیا اور اس سے دریافت کیا گیا کہ تو نے اس سے کیا پیسے مانگے تھے؟ جیسے ہم جب کوئی غلطی کر لیں، ہم سے کوئی جب مسٹیک ہو جائے اور ہم سے جب پوچھا جائے کہ تو اینج کیتا ہے، دیکھیے اسی آسانی نہ کہنا جی ہمارا کیتا ہے ماسٹر جی، نہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ صاف چٹا انکار، نہیں جی نہیں، ساڈے تو اچھا مقدس تے پاک ہے کوئی نہیں۔ اور ایسا ہی اس نے کیا، نہیں نہیں بادشاہ اسلام یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کے محل و دربار میں ہوتے ہوئے۔ آخرکار کچھ لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا اور گواہی دینے کے بعد، شہادت دینے کے بعد فیصلہ ہو گیا اس سپاہی نے یہ کیا ہے۔ تو پھر جو 80 کوڑے اس نے مانگے تھے، وہ جو آدھے آدھے ملنے تھے، وہ پورے کے پورے اسے مل گئے، پورے کے پورے اسے ملے۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے۔ ہم بھی اس خدا کی سلطنت میں، خدا کی اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک خاص رتبہ یا ایک خاص فضل دے کر بھیجے گئے۔ اور وہ رتبہ کیا کہ ہم انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور ہم بھی اپنا مطلب نکالنے کے لیے ہر وہ کام اور ہر وہ عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہے یا برا، چاہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، چاہے اس سے دوسروں کا نقصان ہوتا ہے یا نہیں، ہم اس کی پرواہ کیے بنا اپنی مرضی، اپنا فائدہ یا اپنے بارے میں سوچتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول واضح طور پر کہتا ہے کہ اپنے بدن بطور زندہ قربانی پیش کیے جائیں، زندہ قربانی۔ اور ہمارے لیے زندہ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب جو اپنے اپنے گھروں سے خدا کے گھر میں آئے ہیں تاکہ اس زندہ قربانی میں شریک ہو۔ اور زندہ قربانی کیا؟ پاک یوکرس کی قربانی میں ہم شامل ہوتے ہیں، پاک ماس میں شریک ہوتے ہیں، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون حاصل کر سکیں۔ لیکن جب بھی قربانی کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے ایمانی طور پر، سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں ایمانی طور پر خداوند یسوع مسیح کی قربانی آتی ہے کہ اس نے صلیب پر اپنی جان قربان کی۔ اور اس کی صلیب پر جان قربان کرنے سے پہلے خدا نے قربانی دی کہ اپنے بیٹے کو سب کچھ جانتے ہوئے کہ وہ اس دنیا میں کس طرح کی ذلت اور موت برداشت کرے گا، وہ قربانی دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں انسان ہو کر کے بھیجتا ہے۔ مقدسہ ماں مریم سب کچھ جانتے ہوئے کہ اس کی جان سے تلوار گزر جائے گی، بچپن سے لے کر جوانی تک یسوع مسیح کی پرورش کرتی ہے، اور اسے پتا ہے، علم ہے کہ خدا نے اسے جس مقصد کے لیے چنا ہے وہ اس مقصد میں شریک ہوتی ہے اور اپنے جوان بیٹے کی قربانی برداشت کرے گی۔ اور یہ اس کے لیے قربانی تھی، یہ مقدسہ ماں مریم کے لیے قربانی تھی، اور بیٹا بھی وہی قربانی دیتا ہے، اور بیٹا بھی اس قربانی کو خوش اسلوبی کے ساتھ قربانی کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ قبول کرتا ہے
और अपनी जान कुर्बान करता है। इसलिए कहते हैं कि मसीहत की बुनियाद या आगाज शहीदों का खून है। और कुछ कहते हैं कि मसीहत का दूसरा मतलब ही कुर्बानी देना है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जड़ावाला में मसीहों को जुल्म का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में कई बार ऐसे वाकयात हुए, इनफरादी तौर पर भी, खानदानी तौर पर भी, और इज्तिमाई तौर पर पूरे के पूरे इलाकों को भी जुल्म का निशाना बनाया गया। और मसीही कुर्बानी देते हैं, लेकिन मसीहत को छोड़ते नहीं हैं, मसीहत से दूर नहीं भागते। घर जलाने हैं तो जला दो, लेकिन हम अपने ईमान से मुनकिर नहीं होंगे, दूर नहीं भागेंगे। ये हमारी कुर्बानी है और यही हमारा खुदावंद यीशु मसीह का जलाल जाहिर करना है। और जब हम कुर्बानी देते हैं, छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर, छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर, वो खुदा के जलाल का जरिया बनता है। पहली बार था किसी मासूम को, किसी बेगुनाह को सलीब चढ़ाया गया। उससे पहले जिनको सलीब चढ़ाया जाता रहा वो गुनहगार थे, जालिम थे, चोर थे, माशरे के गुनहगार थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, उस सलीब को कबूल किया, अपनी जान कुर्बान की, तो उससे खुदा का जलाल जाहिर हुआ। जिनके लिए वो जिल्लत का निशान था, हमारे लिए वो ईमान का निशान बन गए, जिंदगी का निशान बन गए, और खुदा के जलाल का। इसलिए कुर्बानी जब हम देते हैं तो खुदा के जलाल का जरिया और वसीला बनते हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उस कुर्बानी के लिए अपने आप को तैयार करता है। ना सिर्फ अपने आप को तैयार करता है, बल्कि वो उस कुर्बानी के लिए अपने साथियों को भी, रसूलों को भी तैयार करता है, साथियों को भी और रसूलों को भी तैयार करता। और तैयारी के लिए क्या कहता है आज के जिले मुकद्दस? ऐसा नहीं कि पहली बार खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों को अपनी मौत की बाबत बताया हो। आपको याद होगा कुछ ही त्योहार पहले कि जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर गया और उसकी सूरत बदल गई, याद है वो वाकया? और जब सूरत बदल गई तो कौन कौन उससे मिलने के लिए आया था? मूसा और इलियास उससे मिलने के लिए आए। शाम जब वो उससे मिलने के लिए गए तो रसूलों ने क्या कहा? हम यहाँ 3 डेरे बनाए। किस किस के लिए? पहले यीशु के लिए, फिर मूसा और इलियास के लिए। उसके बाद से खुदावंद यीशु मसीह, हमने जो भी इतवारों में तिलावतें सुनी, उसके बाद की तिलावतों में से यीशु मसीह गाहे बगाए रसूलों को तैयार करता है कि वो किस तरह की मौत बर्दाश्त करेगा, कैसे होगा, क्या होगा, सब चीजें। जैसे आज के जिले मुकद्दस में वो कहता है कि मैं यरूशलेम को जाऊंगा और बुजुर्गों, सरदार, काहिनों, फकीरों के हाथ से बहुत दुख उठाऊंगा और कत्ल किया जाऊंगा। मरने की खबर देता है। और जब वो मरने की खबर देता है तो उस वक्त क्या होता है? क्या होता है उस वक्त? जरा गौर करें। आप अपने घर में वालिदैन अपने बच्चों में से और बहन भाइयों में से अगर हमारा कोई घर का मेंबर ये कह दे कि मैं मरण वाला हो गया, मैं मर जाना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं? खुदा ना करे। शाबाश। एक तो ये जुमला अदा होता है, और दूसरा पसीना छूट जाता है। पसीना भी छूट जाता, डर लगता है, और हम डांटते भी हैं उसको, तू ऐसे अल्फाज क्यों मुंह से निकाल रहा, क्यों ऐसा कर रहा है? अब क्योंकि ये हमारे घर के करीबी मेंबर है, कभी कभी हम उसे डांटते हुए मारते भी हैं, बड़े थप्पड़ भी हल्का सा ठोक दे, तू क्यों ऐसी बात कर रहा है या कर रही है? ये ऐसा करने से हरगिज़ नहीं कि हम नफरत जाहिर कर रहे हैं। ऐसा करके हम क्या जाहिर कर रहे हैं? हम उससे अपना
प्यार जाहिर कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि तू मरे, हमारी आंखों के सामने या कान ऐसी बात या सुनने ही ना, हम तैयार ही नहीं है इसके लिए। ये घर के रोजमर्रा जिंदगी के मामलात हैं कि जो हम अपने घर में अदा करते रहते हैं और डांट कर रोक देते हैं, डांट कर रोक देते हैं। ये तैयारी का अमल था जो यीशु मसीह कर रहे। जैसे कुछ साल पहले मेरे बड़े भाई का इंतकाल हुआ। वो 4 साल तक 5 साल तक हेपेटाइटिस का पेशेंट रहा और गाहे बगाहे दवाइयाँ और मेडिसिन और नए नए डॉक्टरों के साथ उसका विजिट होता रहा। लेकिन उसकी जिंदगी का जो आखिरी महीना था उसने सीएमएच हॉस्पिटल में गुजारा। सीएमएच हॉस्पिटल में जब एडमिट था तो गाहे बगाहे आखिरी महीने में डॉक्टर हमें गाहे बगाहे आगाही देने लग गए कि नहीं जी बस अब ये इसका थोड़ा ही वक्त रह गया। जब इन सारी बातों को जब डॉक्टर हमें बताने लगे कि जी मर्ज आखिरी स्टेज पर चला गया है, हकीकत में वो हमें मेंटली तैयार कर रहे थे। हमें ये बावर कराना चाह रहे थे कि बस इसकी जिंदगी थोड़ी ही है, बस ये किसी भी वक्त कूच करेगा, इंतकाल कर जाएगा। अब क्योंकि मेरा बड़ा भाई ननियाल में से बहनों में से सब बहनों के बच्चों में से पहला बेटा था और दरदयाल में से भाइयों के बच्चों में से यानी मेरे ताया चाचाओं में से वो पहला बेटा था। तो जब पहला बेटा होने का रुतबा ननियाल में भी मिल गया, दरदयाल में भी, तो वो दोनों की तरफ से मोहब्बत का या प्यार इकट्ठा करता रहता था। तो सबके लिए बड़ी दुख की बात थी। जो आसानी से कबूल कर सके उन्हें कम दर्द महसूस हुआ जब तैयारी कर ली, और जिन्होंने तैयारी नहीं की उनके लिए तकलीफ और दर्द कुछ ज्यादा ही था। अब ये तैयारी जब हम कर लेते हैं तो हमें वो आने वाले वक्त पर जो दर्द तकलीफ मिलता है वो कम होता। अब यीशु मसीह भी उसी दर्द और तकलीफ से बचाने के लिए अपने रसूलों को तैयार कर रहा था। अब पतरस ने क्या कहा, क्योंकि पतरस का उस्ताद था, रूहानी रहनुमा था, रबी था, तो जब उसे वो कहता है, लिखा है कि वो यीशु को पतरस अलग ले जाकर एतराज करने लगा। जैसे हम भी गिला करते हैं, क्यों तूने ये लफ्ज अपने मुंह से निकाला, खुदा ना करे ऐसा हो। तो पतरस भी एतराज करता है यीशु के साथ और क्या अल्फाज अदा करता है, ऐ खुदावन तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाक़या ना हो। जब वो अपने कत्ल किए जाने की या मौत की बात करता है तो पहली तो बात कहता है कि तेरी सलामती हो, जैसे हम कहते हैं खुदा ना करे, उसने कहा तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाक़या ना होगा। अब ये बातें थी कि जो वो यीशु के बारे में ख्याल रखता है और उसकी मौत का सुनकर नहीं चाहता कि मौत वाक़या, जैसे हम अपने घर में करते हैं अजीज रिश्तेदारों के लिए, घर के मेहमान के लिए, बच्चों के लिए, शौहर के लिए, बीवी के लिए, ये अल्फाज सुनने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसा ही वहां भी था। यहां तक तो यीशु मसीह की तैयारी और मौत का तज़किरा था, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह पतरस से दोबारा मुखातिब होता है, दोबारा बातचीत करता है, तो याद रखें कि जब भी हम कोई खुदा का काम करते हैं, खुदा के प्लान के मुताबिक, खुदा के जलाल के लिए काम करते हैं, तो सबसे पहले शैतान आकर रुकावट बनता है। शैतान आकर रुकावट बनता है। और जब हम ये कहते हैं कि शैतान आकर रुकावट बनता है तो हमें उसे पहचानने की जरूरत है। हमें उसे पहचानने की जरूरत है कि वो शैतान किस तरह से आता है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने जुमला अदा किया, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है। क्या पतरस शैतान था? क्या नहीं, ये वही पतरस है जिसे यीशु मसीह ने कैफा कहा। ये वही पतरस है जो कलीसिया के लिए चट्टान बना। ये वही पतरस है जो कलीसिया में पहला पोप बना।
यानी यस्सु के बाद कलीसिया का सरबरा, हदायत और रहनुमाई करना, ईमान की मजबूती का जरिया बनने वाला, ये वही पतरस था। लेकिन उसे खुदावंद यीशु मसीह कहता है, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर होता। अब जब हम खुदा का काम करना शुरू करते हैं, खुदा के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू करते हैं, या कोई बात करते हैं, तो शैतान किसी भी सूरत में आता है। जैसे आज अब सब खुदा के घर में आए हैं, खुदा के घर में आए ताकि पाक कुर्बानी में शरीक हो, खुदा का कलाम सुने और पैगाम सुनकर दुआ कर सके। अब अक्सर बात होता क्या है, आज भी होता है और बार बार होता है कि हमारे साथ बैठने वाले दोस्त, सहेली, घर के मेंबरान, ग्रुप्स के मेंबरान जब हमारे साथ बैठे होते हैं, हम कलाम की बात कर रहे हैं, कलाम की बात कर रहे हैं, दुआ की बात कर रहे हैं, पाक युतरस की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे कानों में कोई और ही बात करते हैं। उधर देखो क्या हो रहा है, इधर देखो, हम घर की बातें लेकर बैठ जाते हैं। तो क्या हुआ, ये दो लोग, एक जो कलाम सुन रहा है, बरकत हासिल कर रहा है, लेकिन दूसरा उसे खुदा की राह में आने से रोक रहा है, यानी खुदा का कलाम सुनने से रोक रहा है। तो उस वक्त जुर्रत करना दूसरे शख्स को भी शैतान से बचा देता है। अगर हम उस वक्त ये कह दें, ना सिर्फ गिरजाघर की बात कर रहा हूं, घर में भी, मोहल्ले में भी, दोस्तों में भी, कंपनी में भी, काम करने वाली जगह में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, फैक्ट्रीज में भी, हर जगह आपको जायज और नाजायज के दरमियान, अच्छे और बुरे के दरमियान, सच और झूठ के दरमियान फैसला करना है। और उस वक्त कहना, जो गलत तंबीह कर रहा है, गलत राह दिखा रहा है, उसे कहना, ऐ शैतान दूर हो। इसके लिए जुर्रत की जरूरत है, इसके लिए जुर्रत की जरूरत है कि जो मेरा करीबी दोस्त है, सहेली है, हो सकता है मेरा इंचार्ज ही हो सकता है मेरा इंचार्ज ही हो, कलाम हो रहा है और इंचार्ज कह रहा है, अल्लाह पढ़ ए गीत गाना, इंचार्ज कह रहा है, रुक जा कारी ग्रुप, ये मुनाजात तेरी है। उस वक्त कहना कि ऐ शैतान दूर हो, मैनू कलाम सुनन दे, ऐ शैतान दूर हो, मुझे पैगाम सुनने दे, क्योंकि ये कलाम और पैगाम मेरी जिंदगी से खत्म नहीं होगा। ये कलाम और पैगाम ही मुझे खुदा की कुर्बत और खुदा के जलाल तक लेकर जाएगा। ये कलाम और पैगाम ही मुझे एक अच्छा शागिर्द बनाएगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है आज के इंजील मुकद्दस में कि जो मेरा शागिर्द बनना चाहे वो अपनी सलीब उठाए, खुद इनकारी करे और मेरे पीछे हो ले। आप में से कौन खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बनना चाहता है? याद रखें, 1000% और उससे भी कहीं ज्यादा एक हकीकत और सच्चाई की बात, आप सब जो शागिर्द बनने के लिए हाथ उठा रहे हैं, आप उसके शागिर्द हैं, आप उसके रसूल हैं। बनने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही हो गए, क्योंकि बपतिस्मा के वक्त जब हम बपतिस्मा हासिल करते हैं, बपतिस्मा के साथ ही हम उसके शागिर्द बन जाते हैं, बादशाह बनते हैं, नबी बनते हैं, कामिल बनते हैं। और एक रसूल यही काम करता है, हम खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, रसूल की मानिंद पैगाम देने वाले। सिर्फ जरूरत क्या है, उस शागिर्दियत को, उस रसूल बनने की ताकत को, फर्ज को अदा करना है, फर्ज को अदा करना। और जब वो कहता है कि अपनी सलीब उठाओ, खुद इनकारी करो और मेरे पीछे हो लो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हमारी जिंदगी में खुदा और मेरे दरमियान, इसी तरह आपने कहना है सब मिलकर के, खुदा और मेरे दरमियान, खुदा और मेरे दरमियान। अब जो भी चीजें, जो भी बातें, जो भी काम, जो भी अमल जो रुकावट बनते हैं, वो मेरी सलीब है। जैसे झूठ बोलने की कई लोगों को आदत होती है,
मैं एक छोटे पैमाने की बात कर रहा हूं। आपको अपनी जिंदगी में खुद जांचना और पड़ताल करना है, अपने आप को खुद परखना है कि मेरी जिंदगी में सलीब क्या हो सकती है। जैसे झूठ बोलना, झूठ से हम थोड़ा सा फायदा तो हासिल करते हैं, लेकिन हकीकत में खुदा के जलाल में शामिल होने की रुकावट पैदा हो जाती है। तो फिर वो सलीब बन गई है। अपनी सलीब उठाना, खुद इनकारी करना, हकीर बनाना। मिसाल के तौर पर मैं झूठ बोलता हूं मास्टर जी के साथ, तो मुझ में इतनी खुद इंसारी आ जाए, खुद इनकारी कर सकूं कि अगले ही लम्हे, अगले ही दिन मास्टर जी को कहूं, मास्टर जी कल मैंने झूठ बोला था, मैं माजरत चाहता हूं। अपने आप को हकीर और आजिज बनाना ये है, खुद इनकारी करना ये है। जैसे कोई भी चीज जो हमारे बदन को पामाल करती है, क्योंकि बदन तो रूह कुदस की हैकल है ना, और जो हमारे बदन को पामाल करती है, उन चीजों और बातों से अपने आप को दूर करना, उन चीजों और बातों से अपने आप को दूर करना। मैंने कहा चीजों और बातों से, और बात जो हमारे कामों में शामिल हो जाते हैं। हम कहते हैं और फिर करते हैं, हम कहते हैं और फिर करते हैं, वो काम बन जाते हैं। लेकिन जो चीजें हम खाते हैं, जैसे गुटखा, मैं माजरत चाहता हूं, गुटखा नहीं, चॉकलेट जो हम खाते हैं, चॉकलेट जो खाते हैं, उनके लिए वो चॉकलेट से भी बढ़कर है। याद रखें कि वो आपके बदन को तबाह करते हैं। तो फिर वो सलीब बन गई कि हाँ, अगर मैं दिन में 2 बार खाता हूं, एंड जो होता नहीं कोई 2 बार खाए, 200 बार कमा तक माने आ जा सकता है कि नहीं? ठीक है, अब वो सलीब है मेरी, मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं झूठ बोलना, मैंने नहीं लालच करना, मैंने नहीं धोखा देना, मैंने हर उस काम और अमल से अपने आप को हल्का करना है। तो सलीब है मेरी वो। और जैसे जैसे हम उठाते जाएंगे सलीब, खुद इनकारी करेंगे कि हाँ मैं नहीं करूंगा, नहीं होगा, तो वो हमारे लिए निजात की तरफ बनेगा। फिर हम सच्चे और अच्छे शागिर्द बन सकते हैं, फिर हम खुद इनकारी करते हुए खुदा के जलाल की तरफ बढ़ सकते हैं। और जब कभी हम ना कर पाए, और जब कभी, क्योंकि मैंने देखा है ये कि अगर एक कोई अच्छा बनना चाहे ना, चॉकलेट छोड़ दे खाना, तो दोस्त नहीं छोड़न देंगे कि नहीं, कि नहीं? तो नहीं पूछ रहा, बाहर आ जाना, ठीक है? तो क्या मैं बताना चाहता हूं, तो फिर वहां कहना, ऐ शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि मैंने यीशु की मानिंद अपनी सलीब उठाई हुई है। मैं यीशु के नक्शे कदम पर चल रहा हूं, मैं ये अमल नहीं करूंगा। फिर हम उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां होने का फर्ज अदा कर सकते हैं। फिर जो हमने हाथ उठाया, जी मैं रसूल बनना चाहता हूं, रसूल तो हम पहले से ही बन गए, अब उस रसूल होने का हक अदा करने का वक्त है। मेरी दुआ है कि कुदूस बाप हम सबको ये जुर्रत, ईमान की मजबूती अता करे कि हम भी यीशु की मानित कह सकें कि ऐ शैतान मुझसे दूर हो। अजीज़ो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतअल्लिक़ बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावन इस कुर्बानी को आपके हाथों से आपके नाम की बड़ाई के तमाम इज़्ज़त के खुदावंद हमारे खुदा, ये पाक नजराना हमें लगातार तेरी सेहत बख्श बरकत दिलाए, और कि जो कुछ निशान के तौर पर इससे होता है वो तेरी मौसर कुदरत से कामिलियत पाए, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावन आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ दियां लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है, ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। वो मेहरबान होकर और गुमराह इंसान पर तरस खाकर हमारी माँ से पैदा हुआ, उसने सलीब पर दुख उठाकर हमें अबदी मौत से बचाया और मुर्दों में से जिंदा होकर हमें हमेशा की जिंदगी अता की।
اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 دامن لشکروں کے خدا، آسمان و زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ آج مبارک و شانہ، مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے، آج مبارک و شانہ۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول فرما، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہاری بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک تو نہ آئے۔ بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر، ساتھ ہمارے روحانی باپ فرانسس، ہمارے بشپ بینی اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کوری مریم، حضرت یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ایک دوسرے سے سلام کہیں۔ اے خدا کے برے، جس جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، جس جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، جس جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلام۔ اے خداوند ہمارے خدا، تجھ سے التجا کرتے ہیں، عنایت کر کہ ہم آسمانی ضیافت کی روٹی کھا کر محبت کی اس غذا کے اثر سے دل کے اس قدر مضبوط ہو جائیں کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں میں تیری خدمت کرنے پر بالکل تیار رہیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت اور فضل آپ سب پر نازل ہمیشہ تک قائم رہے۔
इबादत हो चुकी, सलामती और खुशी के साथ जाएं। राम का शुक्र।